Reading has become the common practice since the time immemorial. But now with the change in time and advancement of technology, the students, adults and children are avoiding books and are addicted to the tech-savvy things like smartphones, laptops, etc. They are more tethered to the computer phone screens and hardly know the joy of reading. Spending some time in the beautification of going through the interesting books, a newspaper reading competition was held in Saint Soldier Paradise School, Dhakoli, in order to inculcate the reading habit in students. Students showed their talent of reading with great zeal and enthusiasm. It was an inter-house competition, so Naisa of Guru Gobind Singh House was selected as Best Reader of English Language, and Puneet from Maharaja Ranjit Singh House was selected as Best Reader of Hindi Language in this interesting event. At the end of competition, principal of school, Mrs. Neelam Bhar, told the students about the importance of reading in their life. Good morning to all of you. Today I, Naisa from Saint Soldier Paradise School, Dhakoli, represent GGS House in Inter-School News Reading Competition. My topic is CBSE English to help students keen on vocational education. Based on the recommendations of the National Education Policy 2022, which mandates that learning opportunities must be provided as per the learner's need. The Central Board or Secondary Education introduced two-level courses in various subjects in 2022 and 23 academic session, and English was one of them. Consequently, students of class 10 have the option to study the English syllabus for the 2022 and 2023 academic session, which would have a direct bearing on their board result performance. The aim of the English curriculum is to enable the learner to communicate effectively in real-life situations. After decompting the cumulative English option in the 2018 and 19 academic session, the board decided to bring it back as per the NEP 2022 recommendations to help remove the barriers in English language learning, which makes studying the subject a challenge for more students. मेरा नाम पुनीत है। मैं सेंट सोल्जर स्कूल ढकोली का छात्र हूँ। आज मैं आपके समक्ष अपने सदन महाराजा रंजीत सिंह सदन की ओर से इंटर हाउस समाचार पत्र पठन प्रतियोगिता में भाग लेने जा रहा हूँ। आज मेरे बोलने का विषय है डेनमार्क के स्कूलों में ऐप से बच्चों के मूड की निगरानी। इससे टीचर छात्रों की नींद, स्क्रीन टाइम व खुशियों के स्तर का पता लगा पा रहे हैं। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन के एक स्कूल में वीकेंड पर 5वीं कक्षा में केक खाने का सेशन चल रहा था, जो डेनिश स्कूलों में एक आम परंपरा है। जब बच्चे चॉकलेट केक खा रहे होते हैं तो शिक्षक एक व्हाइट बोर्ड पर डिजिटल इन्फोग्राफिक खींचते हैं। यह चार्ट बताता है कि बच्चे कैसा महसूस कर रहे हैं। इस बार स्कोर 5 में से 4.4 निकला और बच्चों ने अपने पारिवारिक मूल्यों को सबसे ज्यादा स्कोर दिया। शिक्षक ने हवा में थम्स अप का साइन देते हुए कहा, एकदम बढ़िया। इसके बाद बच्चों की नींद संबंधी एक इन्फोग्राफी आता है। यह बताता है कि बच्चे नींद के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तत्काल शिक्षक बच्चों को अपनी नींद की आदतें सुधारने के लिए बुलाते हैं। वूफ ऐप को स्कूली बच्चे कंप्यूटर या फोन पर एक्सेस करते हैं। इसके यूजर इंटरफेस में एक कार्टून बच्चों से उनके जीवन के बारे में कई सवाल पूछता है। ऐप को साप्ताहिक आधार पर उपयोग करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो बच्चों को उनके मूड और जीवन के अन्य पहलुओं के आधार पर 1 से 5 की रेटिंग में स्कोर देता है और पूरी कक्षा के लिए मूड मीटर बनाता है। यह ऐप कक्षा पर ध्यान केंद्रित करने और अन्य मुद्दों पर सुझाव देने के लिए एल्गोरिदम का इस्तेमाल करता है। हालांकि कुछ विशेषज्ञ ऐसी मॉनिटरिंग को निजता का हनन मान रहे हैं। उनका तर्क है कि बच्चों का डेटा गलत इस्तेमाल नहीं होगा। मेरा नाम वृंदा है। मैं सेंट सोल्जर स्कूल ढकोली की छात्रा हूँ। आज मैं आपके समक्ष अपने सदन गुरु गोविंद सिंह की ओर से इंटर हाउस समाचार पत्र पठन प्रतियोगिता में भाग लेने जा रही हूँ। आज मेरे बोलने का विषय है डेनमार्क के स्कूलों में ऐप से बच्चों की मूड की निगरानी। इससे टीचर छात्रों की नींद, स्क्रीन व खुशियों के स्तर का पता लगा पा रहे हैं। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में एक स्कूल में वीकेंड पर 5वीं कक्षा में केक खाने का सेशन चल रहा है, जो डेनिश स्कूलों में एक आम परंपरा है।
जब बच्चे चॉकलेट केक खा रहे होते हैं तो शिक्षक एक व्हाइट बोर्ड पर एक डिजिटल इन्फोग्राफिक खींचते हैं। यह चार्ट बताता है कि बच्चे कैसा महसूस कर रहे हैं। इस बार स्कोर 5 में से 4.4 निकला है और बच्चे ने अपने पारिवारिक मूल्यों को सबसे ज़्यादा स्कोर दिए हैं। शिक्षक ने हवा में थम्स अप का साइन दिखाते हुए कहा, एकदम बढ़िया। इसके बाद बच्चों की नींद संबंधी एक इन्फोग्राफिक आता है। यह बताता है कि बच्चे नींद के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तत्काल शिक्षक बच्चों को अपनी नींद की आदतों में सुधार करने के लिए बुलाते हैं। वूफ ऐप को स्कूली बच्चे कंप्यूटर या फ़ोन पर एक्सेस करते हैं। इसके यूज़र इंटरफेस में एक कार्टून बच्चों से उनके जीवन के बारे में कई सवाल पूछते हैं। ऐप को साप्ताहिक आधार पर उपयोग करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो बच्चों को उनके मूड और जीवन के अन्य पहलुओं के आधार पर 1 से 5 की रेटिंग में स्कोर देता है और पूरी कक्षा के लिए मूड मीटर बनाता है। यह ऐप कक्षा पर ध्यान केंद्रित करने और अन्य मुद्दों पर सुझाव देने के लिए एल्गोरिदम का इस्तेमाल करता है। हालांकि कुछ विशेषज्ञ ऐसी मॉनिटरिंग को निजाता है मान रहे हैं। उनका तर्क है कि क्या बच्चे के डेटा का गलत इस्तेमाल नहीं होगा। धन्यवाद।